Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the very important session that I'm discussing for you the most important points from the chapter statistics. Statistics can be considered one of the scoring chapter because in ND written examination there are fixed number of questions. Minimum 8 questions you can easily expect and maximum 12 questions you can expect on the topic of statistics, which varies from the basic theoretical knowledge till the formula knowledge about the topic statistics. तो मैं इस सेशन में बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज कवर कर रही हूँ अलोंग विद द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन देयर विल बी वन मोर सेशन ऑन स्टैटिस्टिक जहाँ पे मैं रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में भी डिस्कस करूँ क्योंकि यही सब टॉपिक्स है. अगर आप 1-2 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेते हो स्टैटिस्टिक की देन यू विल बी इन पोजिशन टू अटेम्प्ट ऑल द 12 क्वेश्चंस ऑन द स्टैटिस्टिक टू बूस्ट योर स्कोर इजीली. ठीक है, तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं by revising the primary and secondary data के meaning से. Do you know what do you mean by a primary data and secondary data? Do you know what is primary and secondary data? Basically data can be collected by a particular person initially, right, and the later stage that can be accessed by somebody else. So the initial stage collection of the data that is done by the investigator himself is known as the primary data, while the data which are not originally collected but rather obtained from the some sources. For example, already somebody have created the databases and from those databases now other one is accessing the data. So this is like the data which is not originally collected but rather it is obtained from the some other sources, then that is called as secondary data. Hopefully you understood clearly. So you can now yourself ask your question that what are the different examples then I can consider into the primary data and secondary data. Any sort of information collected personally from a person to by the other person, right? Pure raw data collected from a person in person itself, it's a primary data. But secondary data is like there would be a third party in the middle from which the data is transferred. Okay, is it clear to you now? So now let's talk about the next point, that is the variable or variate. What does it mean in the statistics? Variable is a kind of characteristics that varies in magnitude from observation to observation. What it is kind of characteristics. For example, you can take the weight, height, income, age, so on, population, illiteracy, literacy rate. So these are all what the variables. Variate we can consider to collect the data regarding the same, right? These can varies in magnitude in the collection. These are the data points for which we are collecting the data, we say na. For example, we are collecting the weights of the students of grade 10 or grade 12, like that, right? Heights of the students studying in the grade 12, right? For example, income by the middle group, income, age, etc. These are all what variable or variate we can say. Now what does it mean the group and ungrouped data? Understand, group data which is organized one. What is it? Organized one into a several groups is called the group data, whereas ungrouped data is kind of the data which is in the original raw form. It is not organized properly that much, okay, that it is just a list of numbers. If we say, in other words, the ungrouped data is what? It's just the list of numbers. It is not organized data. But group data is the organized data. What is it? Group data is a organized data. Right? Now let's talk about the next important points. These are very important points. Mark it in your head. Okay. So what is a class interval? Basically, class interval is like it is meant for the group. We will be making a groups, right? We will be having a group data. So there the groups which used to condense the data are called the classes or class interval. For example, if we collect the data about the 100 students, about their heights, then we won't be listing no 1 to 100 students का height in a line, है ना. हम लोग पूरा 100 स्टूडेंट का हाइट तो ऐसे लाइन से बताने जाएंगे, बहुत सारा स्पेस ले लेगा. इट्स नॉट द cannot be, it is not convenient to talk about the data. The convenient approach would be like we can convert it into classes. We can observe that height is going from 3 feet to 5 feet, then 5 feet to 6 feet. Like we can just write 3 feet to 4 feet, 4 feet to 5 feet. Like we can divide the data about the height into these groups. So these groups which can be used to condense the data are called the classes or the class intervals. Class intervals को जो होते हैं वो दो parts होते हैं, उसको बोलते हैं limits.
जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं CI, उसको क्या रहते हैं, लिमिट्स रहते हैं, दिस लिमिट टू दिस लिमिट। फॉर एग्जांपल जिसकी मैंने डेटा बोला था, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट कलेक्ट किया मैंने, 3 फीट मिनिमम था, मैक्सिमम 5 फीट था, या तो 6 फीट था समझो, तो 3 to 4 फीट, देन 4 to 5 फीट, 5 to 6 फीट, ये जो बनाया ना आपने, ये क्या है, 4 ये लोअर लिमिट है, 5 क्या अपर लिमिट है फॉर दिस क्लास, 4 to 5, 4 to 5। तो लिमिट ऑफ द क्लास आपको समझ में आया ना, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द क्लास, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वैल्यूज ऑफ ईच क्लास आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द क्लास साइज देन, क्लास साइज क्या होगा, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसको आप बाउंड्री भी बोल सकते हो, बाउंड्री भी बोल सकते हो। ये जो है ना 5 to 6 मैंने लिखा, ये 5 to 6, ये 5 और 6 क्या है, बाउंड्रीज है ये क्लास इंटरवल के, इसको लिमिट्स भी बोल सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 6 क्या अपर लिमिट है, 5 क्या है लोअर लिमिट है, ये क्लास बाउंड्रीज भी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, अभी इनके बीच का डिफरेंस आपको दिख क्या रहा है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास विड्थ बोलेंगे या तो क्लास साइज बोलेंगे। वेरी मच क्लियर टू यू। और अभी क्लास मार्क्स क्या होते हैं, फिर क्लास मार्क्स जो होता है ना, ये एवरेज होता है, किसका एवरेज, लोअर लिमिट का एंड अपर लिमिट का एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दूं, अगर समझो क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, ऐसे क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे मुझे बताओ पहले क्लास विड्थ क्या होगी। क्लास विड्थ आप कैसे निकालोगे, आप क्लास विड्थ निकालोगे 20 - 10 करके, जो कि है 10, दिख के भी आ रहा है ना सब में गैप, गैप बिटवीन टू लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, कितना है गैप, वो दैट इज अ क्लास विड्थ और क्लास साइज, यू कैन से 10 की साइज की क्लास है। और अभी मुझे चाहिए क्लास मार्क, तो क्लास मार्क का मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 10 + 20/2, मतलब सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। कोई भी एक क्लास आप पिक कर सकते हो, सबका जो क्लास मार्क रहेगा आप आसानी से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। 10 + 20/2, इसका क्या आ जाएगा 30/2, दैट इज 15, तो इसका क्लास मार्क क्या है 15। जैसे ही आपको क्लास मार्क ये क्लास का पता चल गया, इस क्लास के बारे में आप गेस कर सकते हो, इसका जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पे लोअर लिमिट में डालना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 15 आया हमें क्लास मार्क, तो 10 to 20 का 15 क्लास मार्क आया, मतलब 20 to 30 का 25 होगा, 30 to 40 का 35 होगा, so on. So we can easily predict the class mark once we calculate the class mark for the very first class interval. Clear बात है। अभी आते हैं most important points, other points पे। Frequency. What is a frequency? Frequency, you know, number of times the observation occurs in the given data is called the frequency of the observation. तो frequency distribution क्या होता है फिर? It is the tabular summary of the data showing the frequency of observation. ये एक टेबल जैसा हम लिखते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि ये क्लास इंटरवल का इतना फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास का इतना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैबुलर समरी ऑफ द डेटा विच वी इंटीमेटली कॉल्ड इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है, देखो अंडरस्टैंड करो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा, टैबुलर फॉर्म ऑफ द डेटा, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कब बोलेंगे, जब डेटा प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज क्लियरली शोन। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, समझो ऑब्जर्वेशन 2 जो है 10 टाइम्स है, ऑब्जर्वेशन 3 जो है 15 टाइम्स है, तो ये कौन सा टाइप का हो गया, ये हो गया हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आ रही है बात, ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन के एग्जैक्ट वैल्यू को। बट कॉन्टिन्यूस भी होगा, फिर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, फिर कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम लोग इसमें एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन की कितना है, कौन कितना है नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि क्या रहते, क्लासेस रहते, ग्रुप्स रहते। मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो ऑब्जर्वेशन है इस तरह से बताया गया, 10 to 20 का ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है 30, 20 to 30 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 50। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, 10 to 20 का 30 बोला, इसमें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सा डेटा 30 टाइम से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा करते हैं, मतलब एडिशन करते हैं फ्रीक्वेंसीज का। देखो कौन सा टाइप का, दो टाइप का होता है, या तो उसको हम लोग सक्सेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एडिशन कर सकते हैं, या तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। इसीलिए ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो टाइप का होता है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक पहला होता है लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन में क्या होता है, अभी ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका आप CF बना रहे हो, तो लेस देन में क्या होता है, पहला रीडिंग ऐसे ही लिखा जाता है, जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगा CF का वो ऐड करके आता है, 5 + 15 20 आ जाएगा ऐसे।
बट मोर देन में क्या होगा, मोर देन में कैसे होता है, देखो समझो यहाँ पे मेरे पास है फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, तो मोर देन में हम लोग नीचे से स्टार्ट करते, 5 को ऐसे ही लिखते, फिर ये 5 प्लस 3 यहाँ पे 8 लिखते, 8 प्लस 2 यहाँ पे 10 लिखते। तो समझ में आ रही है क्या बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 के साथ में कौन आ रहा है, इन सबका सम आ रहा। फिर नेक्स्ट पे क्या आ रहा, वो माइनस करके आ रहा, हमें कितना माइनस करके आ रहा, ऊपर का ऑब्जर्वेशन, ये जो 8 आया ना 10 माइनस 2 करके आया, पहला ये जो 10 जो है ना इन सबका एडिशन आया, फिर ये जो दूसरा है जो ना 10 माइनस 8 करके 10 माइनस 2 करके आया पहला ऑब्जर्वेशन, है ना, फिर 8 माइनस 3 करके 5 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मोर देन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है सबकी एडिशन लिखी जाती है और नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। बट हमारा जो क्या बोलते हैं, ये लेस देन है, लेस देन में क्या हो रहा है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, लेस देन दी फर्दर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मैं देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, दोनों को आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि लेस देन फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझो मेरा एफ है यहाँ पे और ये सी एफ ऑफ लेस टाइप है एंड ये है सी एफ ऑफ मोर टाइप। ठीक है, तो समझो हमारा एफ है 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी देखो सी एफ ऑफ लेस टाइप कैसे करेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे एज इट इज, दूसरा कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2 करके, फिर 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15। अभी मोर देन वाला कैसे लिखेंगे, मोर देन वाला पहले पूरा जो सम आता ना कितना था 15, ये पहले को लिख दिया। अभी नेक्स्ट वाला ना सब्ट्रैक्ट करते लिखेंगे, 15 माइनस 1 कितना आता, 15 माइनस 1 आता 14, फिर 14 माइनस क्या है 2 है, 14 माइनस 2 आएगा, 14 माइनस 2 कितना आएगा 12 आएगा, फिर 12 माइनस 3 करेंगे, समझ में आ रहा है, 12 माइनस 3 करेंगे, फिर 12 माइनस 4 करेंगे, 12 माइनस 5 करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमें इसको लिखते जाना है, यहाँ पे लिखते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते लिखते जाना है। सी एफ ऑफ मोर देन टाइप, अभी ये कहाँ पे काम आते हैं, ये काम आते हैं हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। ये जो फ्रीक्वेंसीज है दो जगह पे काम आते हैं, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, दूसरी बात मीडियन फाइंड करने के लिए इसकी बहुत हेल्प मिलती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। हम लोग मैक्सिमम यही फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, स्टैटिस्टिक के जो मीडियन के प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग कौन सा टाइप यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइप लेस देन ऑफ का ही यूज करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेटा है इसको हम लोग ग्राफिकली भी बता सकते हैं, और ग्राफ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है इजीली। इट विल बी वेरी मच easy to analyze the information with the help of the graphical structure of the given information। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है गिवन इंफॉर्मेशन का, या तो हम बोलेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिफरेंट टाइप्स में होता है। सबसे बेसिक टाइप है बार ग्राफ, जिसको आप बार ग्राफ बोलते थे ना, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा रहेगा, बार ग्राफ, बार डायग्राम्स। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसके जो हाइट्स रहते हैं प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रहता है। मतलब जो डेटा यहाँ पे दिया गया है ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे एक्स एक्सिस के इक्वल लेंथ में आप ले लोगे, इक्वल लेंथ का लेके इसके जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहती है, वो you will erect the rectangle of that height of frequency। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ, सिंपल। बट हिस्टोग्राम क्या होता है, फिर हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में डिफरेंस है। हिस्टोग्राम में क्या आता है, जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उसमें इंटरवल्स रहते हैं। हिस्टोग्राम हम जिसका टाइप कर सकते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन में हमारे पास डेटा ना कॉन्टिन्यूस रहता है, ग्रुप डेटा टाइप रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्रुपिंग को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं, क्लास इंटरवल को सी आई करके ले सकते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस रहते हैं। हिस्टोग्राम के जो क्लासेस रहते हैं ये क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हिस्टोग्राम के जो क्लासेस रहते हैं कॉन्टिन्यूस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई समझो 0 to 1 की क्लास, फिर 1 to 2, 2 to 3। ठीक है, फिर उसका भी जो हाइट रहता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में जाता, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो रहता है इट विल बी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बार ग्राफ में रेक्टेंगल का हाइट क्या बताता है, ये आपको दिमाग में रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। हिस्टोग्राम में ये भी क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी हाइट जो होती है प्रोपोर्शनल रहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। वो क्लास की ये पर्टिकुलर, ये 0 to 1 की क्लास की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी है वो क्लास की। ठीक है, सो दैट यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये जब कंटिन्यूस रहते हैं ना क्लासेस, तो ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है, हर एक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहता है, एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहता है व्हेन क्लासेस आर कंटिन्यूस।
अभी यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है, ये थियरी के ऊपर, कि जब क्लासेस अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होते, तभी ये जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द विड्थ ऑफ द क्लासेस। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनल रहता है कौन, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स, जो कि क्या है, ये जो हाइट जो है, ये रेक्टेंगल की हाइट, जब ये क्लासेस अनइक्वल रहते हैं, जहाँ पे उसमें गैप आ जाता है, ऐसे अनइक्वल होते हैं, उसमें गैप आ जाता है क्लासेस के विड्थ में, है ना, तो तभी क्या होता है, ये जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज टू द विड्थ ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अभी इसके बाद आता है अपना पाई डायग्राम, ये भी एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें क्या होता है, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ एनी रेडियस, ठीक है, और इसके हिस्सों में, डेटा को इसके हिस्सों में बांट देते हैं। अभी ये कौन से हिस्से है, ये जो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है उसके हिस्से। तो हमें क्या होता है, पाई डायग्राम, हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें ये एंगल्स का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये एंगल्स हम कैसे निकालते हैं, ये है इसके लिए फॉर्मूला, इट इज कैलकुलेटेड एज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्रीज। अभी समझो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी में बांटा है डेटा को, तो मुझे ए का सेंट्रल एंगल कैसे मिलेगा, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 करके आएगा। ये 360 लेने का रीजन क्या है, यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल, सेंट्रल एंगल को बांटना है हिस्सों में, तो 360 का ही हिस्सा लिया जाएगा ना यहाँ पे। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो 360 के पार्ट में डिवाइड करके ये ए का पोर्शन ढूंढते हैं कि सर्कल में उसका पोर्शन कितना है। सिमिलरली बी के लिए क्या करना, बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल करना, सी के लिए क्या करना, सी की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल करना, तब जाके आपको हर एक के एंगल मिलते। और हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, एक सर्कल ड्रॉ करके, एक रेडियस ड्रॉ करके, पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं, समझो एंगल ए प्लॉट किया, फिर इधर सर्कुलर रख के फिर एंगल बी प्लॉट किया, फिर इधर सर्कुलर को रख के एंगल सी प्लॉट किया। डी स्केल जो आपका रहता है ना, प्रोट्रैक्टर जिसको आप बोलते हो, डी स्केल जो हमारा मेजरिंग स्केल रहता है ना, उसको आप सब पुट यहाँ पे रख के एंगल मेजर कर सकते, फिर यहाँ पे रख के नेक्स्ट एंगल मेजर कर सकते। इस तरह से वो पूरा हिस्से जो है, ये डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आते हैं। तो ये है पाई डायग्राम्स, जो कि वो क्या बताती है, एंगल्स एट द सेंटर प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, एंगल्स एट द सेंट्रल प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताती है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो डिजायर्ड सेक्टर आ रहा है, ये जो इसको सेक्टर बोलेंगे ना, ये जो सेक्टर रहता है, ये सेक्टर कैसे डिवाइड है, इट इज डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू 360 डिग्री इन प्रोपोर्शन। ओके, सो अभी है हमारा नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप सबसे पहले ड्रॉ करते हो हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके, आपको पता है हिस्टोग्राम आप कंटिन्यूअस क्लासेस का ड्रॉ करोगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्लासेस का जो क्लास इंटरवल से उसके क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मैंने बताया ना, और इसका एक क्लास बिफोर एंड एक क्लास आफ्टर तक का पॉइंट्स लेके एक्स एक्सिस पे उसको कनेक्ट करते, तो ये आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, जो कि डायरेक्टली जिसका जो टॉप पॉइंट रहता है, इट विल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। ओके, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम लोग ओगिव करके बोलते हैं, ओगिव। ओके, कुछ लोग इसको ओजिव करके भी पढ़ते हैं, तो वॉट एवर यू वांट टू रीड, ओगिव या तो ओजिव करके भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये जो कर्व्स है, ये दो टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। लेस देन में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम लोग अपर लिमिट्स को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ को। और मोर देन में क्या होता है, उल्टा होता है, लोअर लिमिट्स को प्लॉट करके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्लॉट करते हैं वाई पे। तो दोनों में, मोर देन में, लेस देन ओजीव में, दोनों में हम लोग वाई एक्सिस पे सीएफ को ही प्लॉट करते हैं। बट जब लेस देन की बात होती है तब अपर लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एंड जब मोर देन की बात होती है तो लोअर लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। और एक एक डेटा का अगर मीडियन निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर पे ये लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव ड्रॉ करते, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है, इसको अगर आप परपेंडिकुलर पुट करते हो एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट आता ना, ये रहता मीडियन ऑफ द डेटा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजीव्स हमेशा याद रखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजीव क्या देता,
मीडियन ऑफ द डेटा देता है। तो अगर एक डेटा का मीडियन आपको डायरेक्टली पता करना है तो यू कैन you easily draw with the proper scale, you can draw the graph, but it has to be drawn with very care. It has to be drawn on the plot, you know, the mark paper, like for kind of the graph paper जहाँ पे markings रहते properly, then only you can easily mark the correct median. Otherwise अगर आप roughly draw करोगे तो marking का problem हो जाता है, median का आंसर रॉन्ग आएगा। तो रॉन्ग आएगा तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता रहनी जरूरी है कि व्हाट इज अ मीडियन. मीडियन कैन बी आल्सो प्रेडिक्टेड फ्रॉम इजीली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द लेस than ogive and more than ogive. You can draw at a time for a data both the curves, and you see the point of intersection, put the perpendicular from the point of intersection on the x-axis. You can see on the x-axis the median, because x-axis पे ही यहाँ पे क्लास इंटरवल आते हैं, क्लास इंटरवल में ही हमारा डेटा पॉइंट रहता है। ये तो वाई एक्सिस क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी की एक्सिस होती है, डेटा पॉइंट जो रहता है वो एक्स एक्सिस रहता है, तो जो भी मीडियन मोड मीन आना रहे वो एक्स एक्सिस पे ही मिलता है हम लोग को। समझ में आ रही है ना बात। तो अभी हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है, क्या है? देखो आपको पता है एक डेटा को प्रॉपरली जस्टिफाई करने के लिए एवरेज, दैट इज मीन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा बहुत ही काम आते हैं। और ये जो एवरेज होता है it is considered to be the most, you know, appropriate measure of central tendency for a data, because it is summarize the data to the mid of the data की mid value क्या हो सकती है डेटा की। ठीक है, अगर समझो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्कोर स्टैटिस्टिक्स, अगर स्कोर इज लाइंग फ्रॉम 5 to 50, कुछ तो रैंडम स्कोर्स है, तो ये स्कोर्स का एवरेज स्कोर, मतलब जो मिडल स्कोर रहेगा वो हम लोग पता कर सकते हैं एवरेज कंसेप्ट से, और हम बोलेंगे उसको मीन कंसेप्ट से, और हम बोलेंगे उसको अरिथमेटिक कंसेप्ट से। सो मीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेटा टू कैलकुलेट, टू जस्टिफाई अबाउट द डेटा फ्रूटफुली। ठीक है, to justify about the data, to understand the properties of the data, we calculate the measures of central tendency. And what are these measures of central tendency? These are respectively arithmetic mean, geometric mean, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। सो अभी इसके सबके आप फॉर्मूले में एक बार आपको पढ़ा दूंगी, आपको ये सभी फॉर्मूले क्या करने हैं, रिमेम्बर करने हैं। कोई भी फॉर्मूला के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एनडी एग्जाम के अटेम्प्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन ही अपना क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन ही हमारा, सिंपली मीन भी बोलते हैं ना कभी कभी, तो उसका फॉर्मूला भी अरिथमेटिक मीन का ही। अभी ये नेचर ऑफ डेटा से चेंज होता जाएगा, मतलब पहला टाइप का, अगर डेटा समझो ऐसे लिस्टेड में है, अगर डेटा लिस्टेड फॉर्म में है तो आप इसका यूज कर सकते हो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर। ये समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरेटर। सिग्मा ऑफ एक्सआई, एक्सआई क्या है, डेटा पॉइंट्स है, x1 x2 x3 सो ऑन xn, n डेटा पॉइंट्स है, तो सबका एडिशन करो, डिवाइड बाय कितने डेटा पॉइंट्स ऐड किए, n, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का। इसको हम लोग ए, कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं या तो एक्स बार से, बट मैं बोलूंगी आप एक नोटेशन दिमाग में फिक्स कर लो, एक्स बार करके, ये कन्वीनियंट है और हर एक के लिए काम आ जाएगा ये नोटेशन। ठीक है, और दूसरा टाइप का डेटा होता है लिस्टेड का, ये बट विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने देखा है कि समझो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है, 2 ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स आया, 3 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स आया, ऑब्जर्वेशन 4 3 टाइम्स आया, सो ऑन। जब ऐसा कुछ डेटा रहता है तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं मीन का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 10 बार आया है, ये 3 5 बार आया, तो उतनी बार उनको ऐड करना ना, तो इसीलिए फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। हमें किसको ऐड करना है, इनके प्रोडक्ट को, 2 into 10 प्लस 3 into 5 प्लस 4 into 3 लाइक दैट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसको डायरेक्ट मीन फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मीन फाइंड करने का फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन, अगर छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, छोटी छोटी सी फ्रीक्वेंसी है, तो ये आसानी से हो जाता। बट अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हैं, 100 में है, 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में है, और फ्रीक्वेंसी भी 3 डिजिट 2 डिजिट में, तो बहुत टीडियस हो जाता, कैलकुलेशन टीडियस हो जाता, और यहाँ पे एरर आने के चांसेस बढ़ जाते। डायरेक्ट मेन मेथड में क्या होता है, एरर आने के चांसेस बढ़ जाते जब क्या होता है, डेटा बहुत ही लार्ज रहता। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो इसके अल्टरनेटिव वेज भी है, जब हमारा डेटा लार्ज रहता है तो हम लोग डायरेक्ट मीन की मेथड की हेल्प ना लेते, हम किसी और मेथड की हेल्प ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलेस, जो कि है पहला फॉर्मूला अभी मैंने आपको डिस्कस किया,
डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला, जिसमें आपको डेटा कैसे रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक्स आई कैलकुलेट आपको करना रहेगा, एफ आई दिया रहेगा, है ना, और यहाँ पे इस कॉलम के एंड में आपको एफ आई का कैलकुलेशन चाहिए रहेगा, सिग्मा एफ आई का, ठीक है, और एक्स आई इंटू एफ आई का कॉलम बना लेंगे आप, और यहाँ पे इसका आएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई का आंसर, है ना। तो ये आंसर आपको लेना है ए, ये आंसर आपका है बी, तो ए बाई बी करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट मीन का मेथड, जो कि एक्चुअल मीन के फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है। अभी देखो इसकी बात करते हैं, जो मैं बता रही थी एक शॉर्टकट मेथड जो लार्ज कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते, ठीक है, द शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड। अभी ये मेथड कैसे अप्लाई होती, आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में सी आई, इसका आप कैलकुलेट करोगे एक्स आई, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में एफ आई, ठीक है, आप क्या करोगे, अभी डी आई को कैलकुलेट करोगे। डी आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए वन करके। अभी ये ए वन क्या होता है, ए वन एक एज्यूम मीन होता है, इसको हम लोग एक मिडल ऑब्जर्वेशन लेंगे, ये एक्स आई के कॉलम में से मिडल वाला लेना है इसको। समझो यहाँ पे एक दो तीन चार है तो तीसरा वाला लेना, अगर इसमें पांच है तो भी तीसरा वाला लेना, दो ऊपर दो नीचे छोड़ के बीच वाला लेना, अगर इवन में है तो एक अगला वाला लेना बट पिछला वाला नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो वैसे लेके काम करना है, तो ये सब कॉलम चाहिए। इसके बाद डी आई का कॉलम आप बना लोगे, तो डी आई का कॉलम बनने के बाद आपको निकालना है एक डी आई इंटू एफ आई का कॉलम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एफ आई का आपका एडिशन आएगा, ये है वैल्यू बी, और यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑफ डी आई इंटू एफ आई का एडिशन, जो कि ए बोलो। तो आपको यहाँ पे पहले क्या निकालना होगा, डी बार, डी बार में क्या बोलेंगे, डेविएटेड मीन बोलूंगी, तो ये निकालेंगे सिग्मा डी आई इंटू एफ आई करके डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई करके। ये डी आई इंटू एफ आई को आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा ए वन के साथ। तो आपका जो एक्चुअल मीन एक्स बार है कैसे आएगा, एज्यूम मीन में ये डी बार को ऐड करो। डी बार ये क्या चीज था, ये डायरेक्ट मीन का ही फॉर्मूला यूज किए, बट एक्स आई की जगह पे डी आई को रख के काम किया, एक्स आई की जगह पे डी आई को रख के काम किया, तो हमारा ए वन इसका फॉर्मूला हमें मिल गया, ए वन प्लस ये डी बार ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता द मीन ऑफ द ऑब्जर्व मीन ऑफ द डेटा। क्लियर है बात। अभी इसके अलावा भी और एक मेथड है जो और आसान बना देती है कैलकुलेशन को, वो है हमारी मेथड दैट इज कॉल्ड द स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लगता है, ये स्टेप डेविएशन है, मतलब ये जो है ना क्लास की विड्थ से काम करती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको एक्स आई का कॉलम रहेगा, एफ का कॉलम रहेगा, तो आप पहले तो डी आई बना लोगे, डी आई के कॉलम बनने के बाद आप यू आई बना लोगे। यू आई कैसे, डी आई डिवाइडेड बाय एच करके। एच क्या रहता है आपको पता है ना, एच रहेगा हमारी विड्थ ऑफ द इंटरवल, डिफरेंस ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव, अपर माइनस लोअर लेंगे, एच निकालेंगे तो यू आई कॉलम बनेगा। तो इसके अंदर डी आई के बाद यू आई कॉलम के बाद आपका बनेगा यू आई इंटू एफ आई का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलम में यू आई इंटू एफ आई का एडिशन मिल जाएगा, और एफ आई के कॉलम में सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना कौन रहेगा, ए ये वाला, और ये रहेगा बी। तो आपको निकालना है यहाँ पे यू बार ए बाई बी करके, और जो फाइनल आंसर निकालेंगे आप एक्स बार, ये कैसे निकालेंगे, एज्यूम मीन यहाँ पे भी लगता है ना, क्योंकि डी आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एज्यूम मीन में यहाँ पे यू बार इंटू एच करके डालेंगे, यू बार इंटू एच। यू बार कैसे निकाला, यू बार का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, सिग्मा यू आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके निकाला। देखो ये है हमारा यू बार, तो इसीलिए मीन एक्स बार क्या हो गया, ए वन एज्यूम मीन प्लस यू बार इंटू एच करके, ये हो गया स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला, ए वन प्लस यू बार एच। यू बार कैसे निकालना, सिंपल याद रखो, डायरेक्ट मीन के फॉर्मूले में एक्स आई की जगह पे यू आई कैलकुलेट करके डालना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दैट इज दीज आर द मेथड्स। आप ऑब्जर्वेशन के डिपेंडेंट ये मेथड को चूज कर सकते हो। अगर ऑब्जर्वेशन छोटे मोटे से डायरेक्ट मीन पे जाओ, अगर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े है, मतलब नंबर्स बहुत हाई है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प ले सकते हो, so that it will decrease the number of calculations. It will be easier for you to quickly judge the mean. And step deviation method, let me tell you, it's the most accurate method amongst all three. डायरेक्ट मेथड एरर दे जाती है जब ऑब्जर्वेशन हाई रहते हैं, बट ऑब्जर्वेशन हाई रहने दो,
कम रहने दो, छोटे रहने दो, कैसे भी रहने दो, द बेस्ट अप्रोक्सीमेट मेथड इज द स्टेप डेविएशन मेथड फॉर द अरिथमेटिक मीन। ये बात को आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जिसमें हमें पढ़ना है कंबाइन मीन का फॉर्मूला। अभी कंबाइन मीन होता क्या है? कंबाइन मीन ये ऐसी चीज है, मतलब आपको डेटा पॉइंट्स के जगह पे यहाँ पे डेटा पॉइंट्स का अपना अपना मीन भी देते हैं। समझो कोई तो एक डेटा है, ठीक है, समझो डेटा ऑफ स्टूडेंट्स है। अभी स्टूडेंट्स है गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, तो वो उन लोग आपको देंगे गर्ल्स का मीन भी देंगे एंड बॉयज का मीन भी देंगे। तो ये A1 बोल देंगे गर्ल्स के मीन को, और बॉयज के मीन को A2 बोल देंगे। तो जब आपको मीन्स भी पता है डेटा के, तो गर्ल्स समझो है G, तो G इंटू A1 प्लस B इंटू A2 अपॉन G प्लस B, ये क्या फॉर्मूला बन जाता है? कंबाइन मीन का फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा है? मैंने एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको बता दिया, सिग्मा ऑफ Ni इंटू AI अपॉन सिग्मा ऑफ Ni। समझ में आया ना? तो समझो, अगर समझो कोई चीज, कोई डेटा 3 में बटा हुआ है A B C में, ठीक है, A का मीन है A1, B का मीन है A2, C का मीन है A3, तो इसका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू A1 प्लस B इंटू A2 प्लस C इंटू A3 अपॉन ऑब्जर्वेशन को ऐड करना A प्लस B प्लस C, है ना? कितने कितने हैं वो? A प्लस B प्लस C है, तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। समझ में आई ना बात? इसके अलावा और एक मीन होता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड मीन। अभी वेटेड मीन क्या चीज है? वेटेड मीन में ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है, वेट्स दे के रखे रहते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। समझो x1 ऑब्जर्वेशन का वेट है W1, x2 ऑब्जर्वेशन का वेट है W2, x3 ऑब्जर्वेशन का वेट है W3। तो वेटेड मीन हम डिनोट करेंगे AW से। इसका फॉर्मूला हो जाता है xi इंटू WI, मतलब ऑब्जर्वेशन उसका वेट का प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी जगह पे वेट्स आ रहे, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? फ्रीक्वेंसी के जगह पे कौन आ रहा? वेट्स आ रहे। और यहाँ पे इसमें क्या हुआ था? कंबाइंड मीन में फ्रीक्वेंसी की जगह पे मीन आए थे, बस इतना ही ध्यान रखना है तो फॉर्मूला वही वाला जो हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट मीन वाला ही फॉर्मूला है। डायरेक्ट मीन के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी रहता, कंबाइंड मीन के फॉर्मूले में एफ की जगह पे मीन ही रहता, एंड वेटेड मीन के फॉर्मूले में एफ की जगह पे वेट रहता, बस बाकी सबका स्ट्रक्चर सेम। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। और अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर योर इंडिया रिटन एग्जामिनेशन, कि ये जो मीन है इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है आप कुछ नंबर से ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो तो मीन चेंज होगा। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है आप कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो कुछ नंबर से डिवाइड करो तो भी मीन चेंज होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, समझो हमारे 3 नंबर से 1 2 3, तो इसका मीन मैं एक बार बता दूं, इसका मीन क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 6, 6/3, 6/3, इसका मीन कितना आ रहा? 2 आ रहा। बट समझो अगर मैं अभी डेटा को चेंज कर रही हूँ, +1 +1 +1 कर रही हूँ, ठीक है, तो डेटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा? ये 9/3। देखो 3 आ रहा कि नहीं? द मीन हैज गॉट चेंज बाय +1। तो मतलब आपको यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी कोई डेटा पॉइंट्स को आप +k से चेंज करते हो तो मीन भी +k से चेंज होता। सेम इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, आप वेरीफाई कर सकते हो। -1 -1 -1 करके देखो, ये मीन भी क्या होगा? -1 होके 1 आ जाएगा, रिजल्टेंट मीन, न्यू मीन बोलेंगे इसको हम, न्यू मीन का डेटा। तो समझ में आ रहा है ना? आपको दिमाग में क्या रखना है कि कभी डेटा पॉइंट्स को आप +k से ऐड कर रहे हो तो उसका मीन भी +k होगा। इंडिया में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। और जब डेटा को आप -k कर रहे हो, डेटा पॉइंट्स को, डेटा पॉइंट्स मतलब ऑब्जर्वेशन को, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप -k निकाल रहे हो, हर एक ऑब्जर्वेशन में आप -k कर रहे हो तो मीन भी क्या होगा? -k से चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? सेम इज ट्रू फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, वेयर k इज ए नॉन जीरो स्केलर। जब डिवाइड करेंगे k हैज टू बी नॉन जीरो, जब मल्टीप्लाई करेंगे k हैज टू बी नॉन जीरो, है ना? क्लियर बात है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मीन क्या होता है? चेंज होता है जब आप ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते। इसीलिए हम बोलते हैं मीन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है क्योंकि वो चेंज होता है, इसलिए तो डिपेंडेंट है बोल रहे। चेंज होता है तो डिपेंडेंट है। अगर ये मीन ओरिजिन चेंज हुआ तो चेंज होगा, स्केल चेंज होगा तो चेंज होगा। समझ में आई बात? और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम सम करते हैं किसका? डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन का, तो पक्का जीरो रहता। अगर हम लोग हर डेटा देखे रखा, देखिए इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
अच्छे से समझ लो ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है समझो पहले। अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस बोल रहा, मतलब आपके पास xi है, आपके पास di निकालोगे आप, समझो xi है 1 2 3, इधर मैंने a1 ले लिया 2 करके, तो di कैसे मिलेगा, 1 माइनस 2 कितना, -1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1। तो आप दिख के आ रहा है ना, सिग्मा ऑफ di क्या है, -1 प्लस 0 प्लस 1, देखो 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। तो ये क्या आता है, सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम दैट मीन भी अगर हम लोग कैलकुलेट, ये हम लोग ने जो निकाला था di कॉलम फ्रॉम दैट मीन से ही निकाला था ना, मीन को एज्यूम करके, तो ये जो सम ऑफ डेविएशन रहेगा ये क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, वो कोई भी डेटा होने दो, उसका सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये हमेशा याद रखो। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीन। ये अगर हम स्क्वायर लेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, तो ये क्या देगा, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये देगा 1 + 1 2। तो ये मिनिमम वैल्यू रहेगी करके बोल रहे हैं, ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीन। अगर कुछ और नंबर से करते तो वो बढ़ जाएगी, बट मीन से अगर रिस्पेक्ट में स्क्वायर निकाल रहे डेविएशंस का, उसका सम कर रहे, तो वो सम हमेशा क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी। क्लियर है बात। तो ये सब कुछ हो गया अबाउट अरिथमेटिक मीन। अभी बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ आपको फॉर्मुलेस दिमाग में रखने हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज g is equals to nth रूट ऑफ, अगर समझो 3 ऑब्जर्वेशन है एबीसी, तो ज्योमेट्रिक मीन g क्या रहेगा, क्यूब रूट करके रहेगा, क्यूब रूट ऑफ एबीसी। अगर 4 है तो 4th रूट ऑफ एबीसीडी, ऐसे, तो ऐसे ये डिफाइंड है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप लॉग लगा के, एंटी लॉग लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो g इज एंटी लॉग ऑफ, इसको लॉग अप्लाई किया तो 1/n सबका पावर है ना, वो बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस सो ऑन लॉग ऑफ xn अपॉन n। ये सिंपल सी चीज है, आप अप्लाई लॉग एंड एंटी लॉग किए। सिमिलरली जब हर एक ऑब्जर्वेशन कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ आता, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला रहेगा, frequency should be raised to that observation, x1 to the power f1, x2 to the power f2, so on, xn to the power fn to the power 1/n, that is nth root of, ये क्या बोल रहा, g is equals to nth root of x1 raised to f1, x2 raised to f2 and so on, xn raised to fn। इसको भी एंटीलॉग लॉग लगा के इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि f1 इंटू लॉग x1 आएगा, f2 इंटू लॉग x2 आएगा। समझ में आ रही है ना बात, जहाँ पे ये सिग्मा एफ आई क्या रहता है, कैपिटल एन की वैल्यू रहती है, डिनोमिनेटर में जो एन है यहाँ पे, ये क्या है, ये भी एन, इधर ये क्या चीज है, ये एन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन रहेगा, है ना। स्मॉल एन लेते हैं जब हमारे ऑब्जर्वेशन लिस्टेड फॉर्म में, हम लोग कैपिटल एन कब लेते हैं, जब हम लोग सिग्मा एफ आई बताते, तब हम कैपिटल एन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डेटा क्या है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। क्लियर बात है। अभी देखो नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 सो ऑन 1 अपॉन xn। इसका शॉर्ट में ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं दो ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो इसका हार्मोनिक मीन क्या बोल रहा है, इट इज दी 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b, जिसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे आएगा 2ab/a प्लस b। ये फॉर्मूला आ जाएगा जब दो ऑब्जर्वेशन है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो व्हेन देयर आर ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस। बट जब मोर देन 2 है तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, n डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस सो ऑन, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे। जब फ्रीक्वेंसी रहेगी तो क्या होगा, ये n के बदले सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आएगा, और डिनोमिनेटर में f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f so on fn/xn, तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। So these are all the things about the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Now we'll go to the next measures of tendency, that is the median. Median क्या होता है मैंने already बताया, median is a middle observation. It's what? It's eventually it's a middle observation when the observations are arranged in a ascending or descending order। जब एक ऑर्डर में आप ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर सकते हो, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, तो इसका जो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है, मिडल मतलब समझते हो ना, इधर दो बीच का, इधर तीन बीच का, इधर 4 उधर 4 बीच का, ऐसे, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर अगर मेरे पास 5 है तो ही मैं बता पाऊंगा मिडल, अगर मेरे पास 4 है तो कौन, फिर 2 मिडल हो गए ना, तो इसका मीडियन क्या आएगा, फिर एवरेज आ जाएगा। वही मैं बताना चाहूंगी आगे, कि जब आपके ऑब्जर्वेशंस ऑड रहेंगे तो उसका तो मीन एक ही रहेगा, जैसे कि ए आप देख पा रहे हो ना, इसका मिडल एक ही रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मिडल वाला आंसर बता दो एज अ मीडियन, जब आपका ऑब्जर्वेशंस ऑड में रहेगा। बट जब ऑब्जर्वेशंस इवन में रहेंगे
तो वहां पे 2 मिडल टर्म्स आएंगे, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम उसका मीडियन बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मीडियन रहेगा, मीडियन क्या रहेगा, इट विल बी द एवरेज ऑफ n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये इवन एंड ऑड डेटा के लिए दो फॉर्मूलेज है, आपको दिमाग में रखने हैं। इवन ऑड के लिए n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, इवन के लिए n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। क्लियर बात है। तो ये हो गया सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, दैट इज रॉ डेटा के लिए जब लिस्टेड फॉर्म में डेटा होता। बट डेटा अगर क्लास फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - c अपॉन f × h। अभी ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता बताती हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा CI, उसका आप है ना, CI गिवन रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेगा। आपको निकालना होगा CF का कॉलम, आपको बनाना ना हो। ये कौन सा बनाओगे आप, लेस देन वाला ही बनाओगे, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। ठीक है, वो बनाने के बाद आपको क्या करना रहता, आपको ना ये n/2 कैलकुलेट कर लेना रहता। n क्या होता है, इट विल बी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या रहता है, n। अभी n/2 आप कैलकुलेट करके उसको आप मार्किंग करोगे CF के कॉलम में। तो जहाँ पे n/2 लाई करता उसको आप सेलेक्ट कर लोगे एज ए मीडियन क्लास। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लोगे जिसके अंदर ये n/2 लाई करता CF के अंदर, वो क्लास आप सेलेक्ट कर लोगे। इसका जो लोअर लिमिट रहता L यहाँ पे आता, और ये n/2 तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। C क्या रहती है, CF, जो कि ये प्रीवियस वाली आती, यहाँ पे ये CF आती। ठीक है, और ये F जो है इसकी F आती, वही क्लास की, मीडियन क्लास की। ठीक है, और F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्या रहेगी, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ the data which is of the group kind, which is of the classes group classified group data। क्लियर बात है। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, दैट इज मोड। मोड क्या होता है बता दूं, मोड इज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अमंग्स ऑल द डेटा पॉइंट्स। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ऑब्जर्वेशन, वो हो जाता हमारा मोड। अभी डेटा अगर लिस्टेड फॉर्म में है तो हम देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बार बार आया हुआ है, कौन सा डेटा पॉइंट बार बार आया हो, तो वो डेटा पॉइंट हमारा मोड होगा। बट डेटा जब ग्रुप फॉर्म में होता है तभी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं पहले ये तो बता दूं कि मोड क्या है। द मोड m ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये बाय मिस्टेकली यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, द मोड m ऑफ द ऑब्जर्वेशन of the distribution is the value at the point about which the observation tend to be most heavily concentrated। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है हमारे कलेक्शन में, मतलब मोड वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, तो हमारा जो मोड रहता है इट विल बी टेंड टू दैट ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, विच इज मोस्ट हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, it is generally the value of the variable which appears to occur most frequently in the distribution। अभी देखो दो चीजें, mode for simple data raw data क्या रहेगा, it is the value which is repeated maximum number of times is the required mode। जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट है वही ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, मोड। बट अगर मोड, अगर आप अनक्लासिफाइड डेटा का निकालने जाओ, अनग्रुप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें है, मतलब आपके पास XI है एंड FI है, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखोगे किसकी है, उसका ये XI बताओगे मोड करके। ठीक है, तो द मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट, दैट इज द वेरिएबल XI corresponding to the maximum frequency when the data is unclassified ungroup frequency data। लिस्टेड है, बहुत सारा है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। सिंपल रॉ है, बहुत ही कम डेटा पॉइंट्स है, ओपन डेटा पॉइंट से लिस्टेड फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली उसमें देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन बार बार आया वही मोड होगा। बट डेटा अगर आप टैबुलर फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, जिसमें आप देख पा रहे कि ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी देके रखा, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो ऑब्जर्वेशन उठा लो, वो अपना क्या हो जाएगा, मोड। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं जब आपका डेटा क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा, क्लासिफाइड रहेगा, तो तभी हमारा ये मोड का फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। आपको दिया रहता है CI, ठीक है, आपके पास रहता है F, ये दो ही कॉलम काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करते आएंगे क्लास इंटरवल, तो यहाँ से ये L को उठाएंगे लोअर लिमिट। अभी F0 क्या रहेगा, ये रहेगी F0,
ये ऊपर वाली रहेगी F1 और नीचे वाली रहेगी F2। F0 क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, समझ में है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढ के निकाली है, वो क्लास जो हमने सेलेक्ट किया वो हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 रहती है, उसके ऊपर वाली वो रहती है प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और जो उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे पोस्ट मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। और H क्या रहेगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है, ध्यान में रखना है, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार के जाना है लिटरली। ये मीडियन और मोड का फॉर्मूला तो रट्टा ही मारना पड़ता, ठीक है, आसान सा फॉर्मूला। आप अगर दो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हो इसके तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इन सबको होते हुए भी हमारे पास और एक चीज है जो दिमाग में रखनी है, वो है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर हमें कोई दो सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी पता है तो किसी एक को हम निकाल सकते हैं, तीसरे को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें मीन और मोड पता है तो हम मीडियन को निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि हमें पता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन होता। इसी को अगर मैं सॉल्व करके लिखने जाऊँ तो मैं एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखूंगी, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रख के जाओ, एक ही, ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा। एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, मोड इक्वल टू वाला फॉर्मूला, मोड इक्वल टू क्या रहता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन, मोड इज इक्वल्स टू 3 md माइनस 2 mn, 3 mds माइनस 2 mn, 3 mds माइनस 2 mn करके याद रख लो। क्या, मोड इज इक्वल्स टू 3 mds माइनस 2 mn, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। तो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ चुके हैं और आ सकते भी है, और हमने डिस्कस किए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसके फॉर्मूलेस। इस लेसन से आपको दिमाग में रखने वाली चीजें, द बेसिक थिंग्स दैट आई डिस्कस एंड द अदर द फॉर्मूलाज अबाउट अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, है ना, स्टेप डेविएशन मीन, एज्यूम मीन, डायरेक्ट मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ये सभी आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अलॉन्ग विद दैट मीडियन का फॉर्मूला फॉर इवन डेटा, ऑड डेटा, देन मोड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला फॉर क्लास ग्रुप डेटा ऑल्सो। तो ये सब फॉर्मूले का अभी लिस्ट बना लो आप। अगर आपको ये पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। You can go to the channel description, click on the link and join the telegram channel, and I would be sharing you out with the PDFs of the study materials of this particular classes if you are need in. Okay, thanks for watching this video guys. I would meet you in the next session, because stay tuned, I'll be coming up with the next session where I would discuss the correlation and regression about the statistics, ठीक है।